Okay, so I will start with the main part of the chapter today. Morning में क्या किया हमने? We have seen the classification. Good evening. Okay, so we have seen the classification. Again, I'm just repeating in a short. We have started with the chapter aldehydes, ketones, and carboxylic acid. Okay. Now aldehyde and ketones. I have told you aldehydes are having functional group CHO. इसे C double bond OH भी लिखा जाता है. ठीक है. Then we are having ketones. Ketones are written as dash CO ऐसे भी लिखते हैं या फिर C double bond O ऐसे भी लिखा जाता है. And carboxylic acids. Carboxylic acids are dash COOH or dash C double bond OH. ठीक है. So this is about the functional group of the acids, इस ब्लर दिख रहा aldehydes है, and ketones. क्या ब्लर दिख रहा है. ब्लर दिख रहा है? सभी को ब्लर दिख रहा है? हेलो, यस सबको ब्लर दिख रहा है? यस मैम. ओके ओके, एक मिनट. वाईफाई चला गया क्या अपना? अभी देखो. हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही है. अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही. एक मिनट, मैं ना लीव करके वापस ज्वाइन करूं. इस हाँ दिख रहा मैम है, दिख रहा है. दिख रहा है ना? वही तो. हाँ हाँ ओके. थोड़ा रुका करो ना, वो क्या थोड़ा बारिश भी है तो शायद इस वजह से थोड़ा हुआ रहेगा. ठीक है. तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड CHO, ketones C double bond O, carboxylic acid COH. ठीक है. Aldehydes and acids are always present at the terminal. And ketone will start minimum from carbon number 2. Then we have seen the classification of aldehydes and ketones also. Aldehydes have been classified as aliphatic aldehydes and aromatic aldehydes. Ketones भी क्या था? Aliphatic and aromatic. उसमें दो टाइप था, एक था simple और दूसरा था mixed. तो simple और mixed, I hope you all understood. Simple means across the double bond of this carbon both the groups are same. और जब ये दोनों ग्रुप अलग होंगे C2H5 C double bond OCH3, that time it is called as mixed ketones. ठीक है. After that we have to do here a classification of acids. Next is classification of carboxylic acid. इसके भी दो types है. First is aliphatic, another one is aromatic. ठीक है. What is aliphatic? In which RCOH is there. So it is your aliphatic carboxylic acids. And if you are having aromatic compounds, means AR ring is directly attached to COOH, it is called as aromatic compounds. ठीक है. Aromatic acid. So that in detail we will study. जब आप IUPAC पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है इतना. Is it fine if you will not write down that? I will start with the IUPAC. Is it okay? So aliphatic aromatic for aldehydes also, aliphatic aromatic for ketones also, aliphatic aromatic for carboxylic acids also. ठीक है. So ketones are classified further as simple and mixed. Simple means दोनों साइड पर same carbon and same hydrogen होंगे, same groups होंगे. And in the case of aromatic you are having mixed में दोनों साइड पर opposite होगा. ठीक है. So ये रहा आपका classification of acids also. Now we will go for the most important part of the chapter, that is IUPAC nomenclature. चलो अभी सब लोग अपना बुक पेन सब निकाल के रखो, एक प्रॉपर सा नया पेज निकाल के रखो. यहाँ से हम लोग IUPAC स्टार्ट करेंगे. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट लेट मी चेंज माय पेज. ठीक है. चलो अभी मुझे बताओ IUPAC लिखने के टाइम पर IUPAC nomenclature for aldehydes and ketones. ठीक है. अब आपके जितने भी aldehydes है, aldehydes are end with al and ketones are end with on. ठीक है.
all the aldehydes are end with al, and all the ketones will end with on. So we will start with the first one. एक मिनट, इधर एसिड कहाँ से आ गया? ओ सॉरी, मैं बहुत नीचे चली गई, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, इसमें एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन्स तीनों का साथ में है, so we will do one by one. And acids are end with oic acid. I hope you all know this. So first example, now see, I am going to write down here only the structure and proper IUPAC name. Trivial names भी होते हैं. Trivial names means they are common names जो market में use होते हैं. That you have to write down. That will be your homework. तो next time जब आप आओगे तो मैं आपको ट्राइवियल नेम दूंगी, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके IUPAC नेम निकालोगे. समझा मैंने क्या बोला? ट्राइवियल नेम्स बाय हार्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्राइवियल नेम, you have to draw the structure and you have to write down its proper IUPAC name. That will be your homework. ठीक है, चलो तो पहला वाला लेते हैं, HCOOH. First rule for IUPAC is count the number of carbon. How many carbons are there? Only one. So मेरा parent जो है वो हो जाएगा मीथेन. ठीक है, since I can see over here acid, तो acid किससे end होता है? oic acid से. तो मीथेन का E is replaced by methanoic acid. This is the first one. मैं पहले 5-6 लिखती हूँ, उसके बाद आप एक साथ कॉपी करो. ठीक है, next is CH3COOH. How many carbons? 2. So parent will be ethane. Since it's an acid, you are going to write down over here, it is an ethanoic acid. E of ethane is replaced by oic acid. Okay, next I'm going to write down over here is CH3, CH2, COOH. Functional group का कार्बन भी काउंट करना है. ठीक है, 1, 2, 3. How many carbons? Correct. So what will be the IUPAC name? What will be the IUPAC name then? Propane. है ना, parent will be propane. So it will become propanoic acid. Clear? These three parts are clear. Next, I am writing here CH3, CH2, CH2, COOH. How many carbons? 1, 2, 3, 4. Acid सबसे stronger होता है, हमेशा acid को ही preference देना है. ठीक है, so my parent will be butane, so it will become butanoic acid. मैं अगर fast जा रही हूँ तो please let me know, because IUPAC is very very important. आपको structures, products सब कुछ IUPAC के ऊपर ही होंगे. आपको ये नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट CH3 twice CH COOH. अब ये देखो ये क्या है? ओपन द स्ट्रक्चर. इट इज CH. एक CH3 इधर ऊपर लिख दिया, एक CH3 इधर साइड में लिख दिया. आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो. ये हो गया ये पार्ट. देन COOH. नाउ फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन. So 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3. So what is the longest chain? 1, 2, 3. इसको नंबर नहीं दिया मतलब इट इज योर गेस. तो ये क्या हो गया अभी? 2 dash methyl. How many carbon? 3. It is called as propanoic acid. इतना क्लियर? 2 dash methyl propanoic acid. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. हम लोग टेक्स्ट के पीछे के भी सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी, जितना होगा उतना मैं ले लूंगी. C डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 3. So parent will be propane, but you can see one double bond over here, so propane will become propene. Correct? I have to specify the space, so it is 1, 2, 3. हाँ, कैपिटल लिखा तो भी चलेगा और अगर नहीं भी लिखा ना तो भी चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट मोर प्रिकॉशंसली यू कैन राइट डाउन कैपिटल लेटर. क्या हुआ सुजल, आपको कुछ पूछना है? यू हैव रेज्ड योर हैंड. हाँ बोलो यश. मिस वो बोला ना. ये अपना एसिड को मिस प्रेफरेंस मिलेगा ना यहाँ पर?
हाँ सब जगह एसिड को, वो आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में एक पूरा प्रेफरेंस का चार्ट था, हमने मार्क करके रखा था, पहले एसिड को आता है, बाद में एल्डिहाइड को आता है, बाद में कीटोन को आता है, फिर उसके बाद सारे हैलोजेंस को आता है, अल्कोहल फिनॉल सब कुछ पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में देती हूँ मैं वो चार्ट, वापस से लिखवा के देती हूँ, तो लिख लेना वो, ठीक है। नाउ सी हियर वी आर गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस टू एसिड ओनली, तो इट इज 1 2 3। तो मैं अभी इसका नाम क्या लिखूंगी, प्रोपेनोइक एसिड, बट डबल बॉन्ड है तो प्रोपिनोइक हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, प्रोप टू इन, और डायरेक्टली क्या लिखेंगे, प्रोपिनोइक एसिड। समझा है कैसे किया। अब यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एसिड इज ऑलवेज गेटिंग द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड एसिड इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल, इट इज प्रोप टू इनोइक एसिड, ठीक है। सो इट इज प्रोप टू इनोइक एसिड, सबको समझा। डबल बॉन्ड है प्रोपिनोइक इसलिए एसिड, प्रोपेनोइक ना। हाँ यस, डबल बॉन्ड है इसके लिए ए का ई हो गया। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कशिश, जब एसिड होता है, जब ये फंक्शनल ग्रुप होता है और डबल बॉन्ड होता है, तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफरेंस मिलता है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं मिलता। वो सिर्फ हैलोजन के केस में होता है कि आपके डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, पहले ये 5 एग्जाम्पल में बोलो। ये क्यों डबल, ये लिखा क्यों यहाँ पर, क्योंकि मेरा डबल बॉन्ड है। हाँ बोलो। मिस प्रोपीन टू ओइक एसिड लिखा। प्रोपीन टू ओइक एसिड लिखा तो भी राइट है, बट ये ज्यादा राइट है, तो आपको एकदम में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। तो प्रोपीनोइक आप ऐसे लिखोगे ना, देखो मैं यहाँ पे लिखते हो भी कैसे खराब हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्रोपीनोइक लिखोगे आप, ठीक है। तो भी प्रोपीनोइक एसिड, तो यहाँ पे 2 प्रोपीनोइक एसिड आपको लिखना, ठीक है। दैट विल बी 2 प्रोपीनोइक एसिड। तो अभी यहाँ पे प्रॉपर नेम क्या है, इसको बीच में से ब्रेक कर दो। इन कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पे, तो इट इज प्रोप 2 इनोइक एसिड। इसको तोड़ दो ना बीच में से, क्योंकि आपको इन का पोजीशन बताना है ना डबल बॉन्ड का, तो जस्ट ब्रेक इट, पुट योर 2 इन बिटवीन। समझा। और किसी यस को कुछ मैम। सवाल है। आईयूपीएससी एकदम अच्छे से करो, चाहिए तो मैं आज का पूरा लेक्चर आईयूपीएससी पढ़ाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन एकदम अच्छे से करो, ताकि आपको कोई भी प्रोडक्ट दिया कि भाई इसका आंसर क्या है, तो आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएगा ना, तब कैसे तो स्ट्रक्चर करके आंसर निकाल ही गए, बट आपको पता ही नहीं है कि प्रोपिनोइक एसिड 2 दिखता कैसे है, तो आप आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। और अगर ये 4 चैप्टर्स आपने छोड़े, कौन से, अल्कोहल फिनॉल्स और एचडीए, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइड, विल फेल इन पेपर 2। चारों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल दीज चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, याद रखो ये चीज। जैसे मिस मैंने बट बोला केमिस्ट्री का एक ही होता कि है ना पेपर या दो? एक ही होता है, लेकिन पासिंग अभी सेपरेट है, पेपर 1 सेपरेट, पेपर 2 सेपरेट। अभी कोविड में क्या चेंज किया पता नहीं, बट अभी तो ये साल से सेपरेट किया था, ठीक है। तो मिस यहाँ दोनों तक में भी क्लियर। पास हाँ पास होना पड़ेगा 1 और 2 में? यस यस, और प्रैक्टिकल में अलग से, पहले सब कंबाइंड पासिंग था। अभी क्या बच्चे पढ़ते ही नहीं है ना, फिर जेडबल नीट में तुक्का मारते हैं, फिर एकदम सड़े हुए घटिया डॉक्टर बनते हैं, थर्ड क्लास इंजीनियर बनते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी अपना रूल सब चेंज कर दिया कि पढ़ो और फिर ढंग से पास हो जाओ, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, बोलो पहले, देख लो एक बार, एनी क्वेश्चन सो फार। पक्का, शुड आई प्रोसीड बच्चों। Yes. हाँ ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल है अपना COOH, COOH। अब आप बोलोगे मिस ये दो एसिड है, पर कार्बन कितना है, 2 है ना, तो एकदम बिंदास लिखने का, इधर इथेन, पूरा लिख दिया इथेन। उसके आगे क्या लिखेंगे, डाइओइक एसिड। ब्लर दिख रहा है क्या बच्चों। नहीं मिस, बराबर दिख रहा है। हाँ ऋषि, तुम्हारा शायद से नेटवर्क का इशू है, कुछ चेक करो एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग लीव करके वापस ज्वाइन हो जाओ। अभी नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग एंड देन COOH। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं मैं बताती हूँ बच्चे, क्या लिखते हैं पता है, बेंजीनोइक एसिड। बेंजीनोइक एसिड नहीं होता है, इट इज बेंजोइक एसिड। आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। और अगर आपको बेंजीन लिखने का शौक है तो आप लिखोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, जस्ट पे अटेंशन, डोंट वरी। चलो अभी नेक्स्ट जाएंगे, अभी नेक्स्ट कंपाउंड
I have over मिस here वो रिंग is के वजह से बेंजीन बोल रहे हैं या वो COOH के? ये बेंजोइक एसिड जो है ये C डबल बॉन्ड O की वजह से बेंजोइक एसिड है। और अगर आपको पूरा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो वो पूरा वो आता है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे तो सिर्फ इतना COH फंक्शनल ग्रुप हो गया वो, समझा? अच्छा ये भी हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक, इतना सबको छुपा दिया तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है। कैसे मैंने बोला किसी का सरनेम है, सपोज मेरा सरनेम शेख है, तो मेरे पूरे फैमिली का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, शेख हो गया ना। तो अभी सबका नाम तो अलग अलग रहेगा, शबाना शेख, फिर मेरी सिस्टर का नाम अलग, मेरे पापा का नाम अलग, समझ रहे हो? तो वैसे ही यहाँ पे ये सबका फंक्शनल ग्रुप मतलब सबका सरनेम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम लोग सबके अलग अलग मेंबर्स को नाम दे रहे हैं। आया समझ में? यस मिस। ओके, अभी इसका देखो किसको प्रेफरेंस मिलेगा, एसिड को कि मिथाइल को? ऑफ कोर्स एसिड को, दैट इज 1 एसिड को। 2। तो क्या लिखेंगे, द 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। अभी ये सब सिंपल वाले हैं, डिफिकल्ट वाले मैं लूंगी थोड़ी देर बाद। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट कंपाउंड है मेरा इधर पे वापस से एसिड, और ये हो गया OH। अभी किसको प्रेफरेंस 1 2, आंख बंद करके एसिड को प्रेफरेंस देने का। तो क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल नहीं है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इतना क्लियर हुआ सबको? 10 कंपाउंड देखो। सॉरी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? एक भी वर्ड, एक भी लाइन, ये नहीं देखो मिस। हाइफन आएगा दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं हाइफन। ठीक है, जब ये 2 नंबर लिखेंगे तभी हम नंबर और आपके अल्फाबेट के बीच में भी हाइफन आएगा। फर्स्ट लेटर चाहिए तो कैपिटल लिखो सभी जगह पर। 10 कंपाउंड्स एकदम क्लियर हो गए। और 2 हेडेड लिखेंगे। मिस मिस ये बेंजीन के टाइम पे ऑर्थो मेटा और पैरा का पोजीशन नहीं देंगे? नहीं सुनो, ऑर्थो मेटा और पैरा जो है वो कॉमन नेम्स में आते हैं। IUPAC नेम में आप ऑर्थो मेटा पैरा नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बट इट इज नॉट IUPAC नेम। हम जो लिख रहे हैं वो IUPAC नेम है, आप जो बोल रहे हो वो कॉमन नेम में आता है। मेटा ऑर्थो पैरा इज नॉट कंसिडर्ड एज IUPAC नेम, तो वहां पे आपको ओके मैम। पोजीशंस ही देने हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अभी इसके 2 ही एग्जांपल्स है, लिख दूं क्या इधर ही, फिर एक साथ लिख दो सब। अब ये रहा मेरा COOH, और यहाँ पे भी आ गया COOH। अभी 2 मिस एसिड तो है, वो कॉमन तो नेम क्या कोई नहीं लिखेंगे? पूछता ना। कॉमन नेम कैसे देंगे पता है क्या? अभी जैसे मैंने बोला क्या बोलूं अभी मैं तुम लोग को, हाँ ये देखो ये जो कंपाउंड है ये, इसका नाम क्या पता है? कॉमन नेम अल्फा मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। वाई अल्फा? फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसा कॉमन नेम देंगे और पूछेंगे कि इसका IUPAC नेम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि विच इज अल्फा पोजीशन, नेक्स्ट कार्बन टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है तो इट इज कॉल्ड एज अल्फा मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अभी ये जो है ये, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, समझा? इट्स कॉमन नेम इज ऑक्सैलिक एसिड। अब ये जो लिखा कहाँ गया, ये वाला, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, समझा? इसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड। तो सब कमर्शियल नेम्स है जो मार्केट में यूज होते हैं। मार्केट में जाके आप ऐसे बोलोगे 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड दे दो तो बोलेगा चलो आगे जाओ, उनको थोड़ी समझ में आएगा, सब लोग केमिस्ट नहीं है ना। तो मार्केट के कुछ कमर्शियल नेम्स है, बट वी आर फॉलोइंग ओवर हियर IUPAC नेम, समझा? अभी अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 का एसिड है तो आई विल राइट डाउन हियर बेंजीन 1 2, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बेंजीन डायोइक एसिड नहीं लिख सकते हैं, सो आई एम गोइंग टू राइट बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना क्लियर? और एक है इसका, लिख देती हूँ फिर एक साथ तुम लोग कॉपी करो, फिर और लेती हूँ बाद में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने रिंग नहीं बनाया है, तो इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझा? कार्बोक्सिलिक मिस वो एसिड देखो, चैट हेक्सेनोइक बॉक्स क्यों नहीं में। आएगा? हेक्सेनोइक नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अभी साइक्लिक फॉर्म में है, तो वो IUPAC से इट इज मोर करेक्ट नेम।
साइक्लिक एसिड डिस्परिन बनाने में यूज, यस करेक्ट, करेक्ट है सिद्धेश, बराबर बोला। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द डिस्परिन एंड एस्पिरिन बनाने में यूज होता है, नॉट डिस्परिन, एस्पिरिन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यूज होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज योर एस्पिरिन, उसका कॉमन नेम है। हाँ, यहाँ पे ना साइक्लोहेक्सानोइक एसिड भी लिख सकते हो, बट मोर प्रॉपर नेम इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो तो साइक्लोहेक्सानोइक एसिड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सबको समझा अच्छे से? पहले इतना बोलो, वापस से देखो। आई हैव 1 कार्बन मीथेन, एसिड है इथेनोइक एसिड। आई हैव 2 कार्बन इथेन, एसिड है इथेनोइक एसिड। आई हैव 3 कार्बन प्रोपेन, एसिड है प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसको ओपन कर दिया तो इट इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एसिड एन का क्या बन गया, इन, इनोइक एसिड हो जाएगा, तो प्रोप 2 इनोइक एसिड। फिर दो एसिड है तो इथेन पूरा नाम लिखेंगे डायोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दो एसिड है तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है, सिर्फ COOH अटैच्ड है, तो इट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हो क्लियर? मैं बहुत फास्ट नहीं गई, आपको अच्छे से समझ में आया? क्लियर बच्चों? चलो अभी फटाफट से इतना कॉपी करो, फिर मैं तुम लोग को क्वेश्चंस भी दूंगी। पहले एसिड ऑल्डिहाइड सबका सिखा देती हूँ IUPAC, एंड देन आई विल, एकदम आराम से समझ के करो। कार्बन गिनो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी गिना जाता है, सिर्फ क्लोरीन का कार्बन नहीं गिना जाता फंक्शनल ग्रुप में। मैंने वो 11th में भी बताया था कि अगर एसिड है और उसके साथ क्लोरीन भी आ गया तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो क्लोरीन भी गिन देते हैं। क्लोरीन हाँ नहीं मिस, वो गिनने भी का। सी गिन लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो Cl रहता है। गड़बड़ होता है ना बहुत बार, क्योंकि अपने को क्या सिखाया जाता है, कार्बन गिनो, कार्बन गिनो, कार्बन गिनो। तो कार्बन अगर फ्लो में है, लाइन में है, तो हम लोग क्या करते हैं गलती से कार्बन, क्लोरीन का कार्बन भी गिन देते हैं। सिर्फ क्लोरीन का कार्बन IUPAC लिखने के टाइम पर नहीं गिनना है, बाकी जितने भी कार्बन होंगे सबको गिनने का। IUPAC का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी कार्बन आपको गिनना है। ठीक है, लिखेंगे बच्चों अभी। मैंने देखो कॉमन नेम नहीं लिखा है बच्चों, वो तुम लोग का काम है। मैं कल उसके ऊपर टेस्ट लेने वाली हूँ, 10 क्वेश्चन दूंगी और तुम लोग को उन सबका IUPAC नेम लिखना है, और स्ट्रक्चर भी तुम लोग को ही ड्रॉ करना है। जैसे मैंने बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड राइट डाउन इट्स IUPAC नेम, तो आपको दोनों आना चाहिए। लिख रहे हैं ना? हो जाएगा तो मुझे बोलो, आई विल पुट इट डाउन। कैमरा थोड़ा नीचे करूंगी तो आपको दिखेगा अच्छे से। प्रॉपर्ली सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के टाइम पर ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी गलती, ऐसे लिखेंगे तुम लोग CH3 CH2, फिर सपोज CH लिखा तो इधर बीच में कैसा भी CH, ऐसा नहीं है। रिंग कार्बन टू कार्बन है, सार्वजनिक बॉन्ड नहीं है ये। रिंग कार्बन टू कार्बन, बॉन्ड कार्बन टू कार्बन होता है, तो वहां पे गड़बड़ नहीं करना है, वरना कार्बन का वैलेंसी चेंज हो जाएगा, यू विल गेट 0 मार्क्स। IUPAC में थोड़ा भी नहीं चलता है। ठीक है, हो जाएगा तो बोलो। आई थिंक 7 तक तो दिख रहा है अच्छे से ना? अच्छे से लिखो, एकदम प्रॉपर बुक में बना के अच्छे से लिखो। कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो प्लीज, फील फ्री टू आस्क। मेरी स्क्रीन ब्लर हुआ है। मिस, हाँ बोलो। ब्लर हो रहा मिस है वो, स्क्रीन? मेरे को तो क्लीन दिख रहा है। हाँ मिस। सबको ब्लर दिख रहा है? अरे क्या हो रहा है ये Yes. आज? यस। एक मिनट, रुको, मैं वाईफाई वापस से बंद करके चलो, एक सेकेंड ना बच्चों। अभी देखो, अभी अभी भी ब्लर दिख रहा है? हाँ हाँ, थोड़ा मैं ब्लर है। थोड़ा ब्लर है। अरे यार क्या है ये, एक तो बारिश भी हो रही है इतना फालतू, वाईफाई नहीं चल रहा मेरा। एक मिनट ठहरो हाँ।
अभी देखो, अभी भी ब्लर दिख रहा है? हाँ हाँ full blur। मैम। अभी भी दिख रहा है? हाँ मैम, फुल ब्लर दिख रहा है। अरे बाबा रे, ये क्या चल रहा है? Please, आपका मैं लीव नेटवर्क करके ज्वाइन। बैंडविड्थ इज प्लीज आपका नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो दिखा रहे हैं। हाँ तो एक काम करती हूँ, मैं लीव करके वापस ज्वाइन करती हूँ, तो कोई और होस्ट बन जाएगा तो मुझे वापस होस्ट बना देना, ठीक है? चलेगा? यस हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, चलो लीव करती हूँ, वापस से ज्वाइन करती हूँ। एक मिनट, किसी और को होस्ट बना के ही जाती हूँ, ठहरो। किसको बनाऊँ? यश को बना देती हूँ, दिवेश को बना देती हूँ। दिवेश, आर यू देयर? दिवेश किधर गया? मिस उसका भी कशिश है बीच ना? में बीच में वाईफाई का इशू होता है। कशिश हो तुम यहाँ पे? किसका एकदम स्ट्रांग है? मेरा है। मेरा यश को बना देती हूँ। यश, तुम्हारा सरनेम क्या है? भाई गड़े ना? चलो, यस। मैं एक होस्ट किया, ठीक है? रिकॉर्डिंग बंद मत करना, मैं लीव करके वापस ज्वाइन करती हूँ। अभी देखो, अभी दिख रहा है ठीक से? ब्लर ही दिख रहा है। सबको ब्लर दिख रहा है? हाँ बस फालतू की बात। मैं ब्लरी है अभी भी। रहने दो मैम, थोड़ा नीचे रख दो, मुंह हो रहा है इसलिए शायद blur। नीचे रख दूं क्या? शायद इसलिए होगा, इसलिए भी हो सकता है। हाँ बराबर बोला। अभी देखो, शायद एक सेकंड में हो जाए ठीक। क्या पता, मेरे को तो यहाँ पे सब अच्छे से दिख रहा है और मेरे घर का सब अच्छा से चल रहा है, फोन वोन सब। मिस बीच में हो रहा है, बीच में बंद हो रहा है। अभी देखो, वो अभी शायद थोड़ा हिल रहा था ठीक आया। इसलिए हो रहा होगा। हाँ तो जितना है उतना लिखो, चलो टाइम पास मत करना। मिस अभी दिख आपको रहा है होस्ट क्या? बना बना दूं ना? हाँ बना दो। दिख रहा है ना अभी? लिखने भर का दिख रहा है कि नहीं, इतना बोलो। हाँ मैम दिख रहा हाँ लिखो। मिस ये सब का कॉमन नेम बताओ ना। अभी कॉमन नेम लिखने को जाएंगे, बहुत टाइम जाएगा। टेक्स्ट का पेज नंबर बताओ। 258 पे देखो, फॉर्मिक एसिड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, सेकंड वन इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, थर्ड वन इज कॉल्ड एज प्रोपियोनिक एसिड, इसको बोलते हैं एन ब्यूटायरिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड, ऐसा नाम है। हाँ टेक्स्ट में मिस से मिल लिखो गया। ना 250। हाँ 258 पे देखो, वो आरवार टेबल है पूरा, उधर से ही लिखा है मैंने पूरा। मैम वो हो गया बच्चों? बेंजोइक एसिड एसिड के नीचे ब्रैकेट में लिखा है वो बोलो ना। 8 नंबर 8। 8 नंबर, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। डन बच्चों? आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे वेट से। मैम। सॉरी यार, नेटवर्क का कुछ मैं कर नहीं सकती, मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत जोर से। आप लोग के यहाँ पे हो रही है?
हाँ मिस, उसके वजह से ही होगा, हमारे यहाँ पे भी है। हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत जोर से हो रही है। ये भी लिखो 12th वाला, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मिस आपने वो टेक्स्ट बुक के ऑर्डर से ही दिया है ना सब? हाँ हाँ हाँ, टेक्स्ट बुक के ऑर्डर से ही है। मैम वो 12th वाले में कार्बन रिंग, बेंजीन रिंग क्या नहीं है 12th वाले में क्या? नहीं, बेंजीन रिंग नहीं, बेंजीन। इसलिए इट इज साइक्लोहेक्सेन ना, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। डन दिस मच पार्ट। अभी कुछ क्लीन हुआ, अच्छे से क्लियर दिख रहा है कुछ? मिस 1 मिनट 12 का। नो मैम। हाँ ठीक है। अभी दिख रहा है क्या क्लीन? नो मैम। No, ma'am. मैम वो 12th का क्या है, पढ़ो एक बार। 12th का है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं जरा नेट पर चेक करती हूँ, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। 2 मिनट है बच्चों, जरा मैं चेक करूँ क्या प्रॉब्लम है नेट का। शायद ये बारिश की वजह से हो रहा होगा प्रॉब्लम। अभी देखो, अभी दिख रहा है ठीक से? हेलो? हाँ अभी थोड़ा ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, चलो ठीक है। आगे बढ़े अभी नेक्स्ट IUPAC। नाउ वी विल गो फॉर एल्डिहाइड्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना सबका? हाँ मिस, एक अभी मिनट अच्छे से दिख रहा है। हाँ अभी अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। वो नेटवर्क का इशू हुआ था, कनेक्ट नहीं हुआ था मेरा वाईफाई। चलो, कभी खुलेगा कॉलेज? सब कितना पकाओ काम है ऑनलाइन सब। हाँ मैम। तुम लोग तो कुछ लेके नहीं बैठते, हम लोग पूरा संसार लेके बैठते हैं, पता है क्या? लैपटॉप, फोन, चार्जर, पावर बैंक, क्या क्या लेके बैठते हैं। चलो अभी नेक्स्ट वी विल डू फॉर एल्डिहाइड्स। दिख रहा है ना ठीक से अभी? नाउ HCHO। Again, you can see there is one carbon atom, so parent is methane. ठीक है? Okay. Okay, so HCHO. How many carbons? Only one. So parent is methane, but it is aldehyde, so it will become methanol. ठीक है, it will become methanol. E will replaced by al. Next one, CH3CHO. मैंने क्या बोला था? एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल्स पे रहता है, so it is 1 2. Parent is ethane, so it is called as ethanol. Third one, CH3 CH2 CHO, so it is 1 2 3. क्या नाम आएगा इसका? प्रोपेनल। समझ रहे इतना? That is called as propanol. Next, CH3 CH2 CH2 CHO. Again 1 2 3 4. It is called as butanol. Correct? Fifth one, it is CH3 twice.
CHO एकदम एसिड जैसा ही है, तो इसको ओपन करो, CH3, यहाँ तक हो गया कंप्लीट, एंड देन CHO, so it is 1 2 3, it is called as 2 methyl propanol, 2 methyl propanol, ठीक है। नेक्स्ट we will go with sixth one, that is CH2 डबल बॉन्ड CHO, वापस से क्या हो जाएगा, सेम ना, 1 2 3, क्या लिखेंगे इसको अभी, प्रोप टू इनल, एम आई राइट, प्रोप टू इनल, okay, that is probe to enal. Next is seventh one, I will take over here is CHO, single bond CHO. See what I said, we are having CH3 twice, CHO, so now CH3 is here, CH3 is here, and CHO, so it is 1 2 3, 2 methyl propanol, और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन, और एल्डिहाइड है तो अल, प्रोप टू इनल, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अभी, इट इज कॉल्ड एज इथेन डायल, डाई हो जाएगा ना, तो इट इज कॉल्ड एज इथेन, पूरा नाम, एंड देन डाई अल, ये देखो इथेन डायल। नेक्स्ट वन आई विल राइट डाउन हियर इज बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, तो इट इज CHO, इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड। उसके बाद नाइन्थ वन, आई विल राइट डाउन अनदर एग्जाम्पल हियर, क्या लिखेंगे, CHO CH3, इसको बोलते हैं, बोलो क्या नाम आएगा, 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, करेक्ट, 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट वन, आई होप आपको समझ रहा है, अभी एसिड के जैसा ये सेम एग्जांपल्स है, खाली एसिड की जगह एल्डिहाइड है, बाद में मैं और एग्जांपल्स ले लूंगी, सो डोंट वरी। सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। देन फाइनली वी आर हैविंग ओवर हियर नेक्स्ट वन, दैट इज CHO, इसको क्या नाम आएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बाल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे, डाई कार्बाल्डिहाइड, ये याद रखना, ठीक है, डाई कार्बाल्डिहाइड। और एक है आपका साइक्लोहेक्सेनल, बाद में बताती हूँ मैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनल मतलब अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम, CHO के साथ, इट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेनल, क्लियर, यहाँ तक समझा सबको, हेलो। मिस टेक्स्ट बुक में साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड दिया है। हाँ चलेगा, दैट इज ऑल्सो राइट। अभी तुम लोगों ने वो टाइम पर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है तो बोला साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड क्यों नहीं लिख सकते, तो अभी साइक्लोहेक्सेनल लिखा है तो अभी तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, दोनों भी राइट है। तुम लोग के हिसाब से मैंने ये लिखा साइक्लोहेक्सेनल, क्योंकि तुम लोग को ये ज्यादा इजी जाता है, दोनों राइट है। साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड इज ऑल्सो राइट, एंड साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड इज ऑल्सो राइट, साइक्लोहेक्सेनल इज ऑल्सो राइट, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ मिस दोनों भी वही IUPAC है ना? दोनों भी IUPAC है, यस यस, दोनों भी IUPAC है। समझा क्या सबको, इतना लिखो फटाफट, दिख रहा है अभी ठीक से? हाँ मैम। हाँ ठीक है, चलो फटाफट लिखो, और हो जाएगा तो मुझे बोलो, फिर मैं और एग्जांपल्स लेती हूँ, कीटोन के लेती हूँ।
Thaldehyde and thalic acid is a common name. Thalic acid is a common name. जैसे acetic acid is a common name, वैसे ही thalic acid is a common name. It is used in the preparation of terylene. पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं ना, उसमें बनाने के लिए वो यूज होता है थैलिक एसिड. वो पढ़ेंगे जब भी पॉलीमर चैप्टर सिखाऊंगी ना, that time I will tell you. So it's a common name. Like formic acid is a common name, thalic acid is a common name, acetic acid is a common name, butyric acid is a common name. ठीक है? Okay. सारे ट्राइवियल नेम याद करेंगे यार सब लोग, वो याद ही करना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा के पढ़ो. जैसे मेसेटाइल ऑक्साइड है तो वो आपको याद करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट. If you're done, just let me know. मैम ऊपर करो शुरू. Done. No miss. Okay, I think everyone is done now. ठीक मैम है, चलो अभी. Yes, ma'am. हाँ, ओके 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 ओके. पर अच्छे से लिखो बुक में. हाँ देखो, IUPAC अच्छे से आना ही चाहिए. Done. चलो. Done, ma'am. Okay. Now next I will do for ketones. सुनिए, लेक्चर का टाइमिंग क्या बोला है तुम लोग को? 9 बजे तक बोला है कि 8:30 बोला है? क्या बोला है सर ने? 9 बजे बोला होगा ना? अच्छा, कुछ नहीं मिस बोला. कौन सा? ठीक है, तो 9 बजे तक.
एच लेक्चर एच। चलो अभी हम लोग करेंगे कीटोन्स का। अभी तो फिलहाल जो आपके टेक्स्ट बुक में है मैं वही ले रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं और दूसरे भी लेती हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू क्वेश्चन, दैट क्वेश्चंस आई विल गिव यू। फर्स्ट वन, CH3 CO CH3। देखो ये CO दिखा, ये क्या है आपका कीटोन। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं इसमें और ईथर में। ईथर में सिर्फ O रहता है, कीटोन में क्या रहता है, CO रहता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मिनिमम नंबर 2 से चालू होगा, कभी टर्मिनल पे नहीं रहेगा। तो इट इज 1 2 3। तो कितने हैं, प्रोपेन, E will get replaced by on, propanone. Second one, CH3 CO CH2 CH3। अभी देखो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन। सेकेंड पोजीशन पे है। हाँ, और अगर यहाँ से भी शुरू करते तो 1 2 सेकेंड पे ही आता ना, इसके लिए उसका नंबर देना जरूरी नहीं है। तो क्या लिखेंगे इधर, ब्यूटेनोन। थर्ड एग्जाम्पल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। मीन्स वहां से शुरू करते तो थर्ड पे आता ना। नहीं, यहाँ से शुरू करते तो भी आपको यहाँ पे सेकंड पे ही आता ना। अगर यहाँ पे लिखते तो यहाँ से गिनते, जहाँ से फंक्शनल अच्छा ग्रुप को हाँ लीस्ट मिस। नंबर मिलता है उधर से लिखते ना। अगर यहाँ से लिखा तो यहाँ से गिना 1 2, और अगर यहाँ पे हाँ लिखते तो मिस, यहाँ से गिनते ना, तो ये तभी साइड 1 में 2 लिखते आता। थे। हाँ मिस, समझा। हाँ हाँ बराबर। चलो अभी 1 2 3 4 5। अब इस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो सेकंड पोजीशन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा तो थर्ड हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटेन, पूरा लिखने का, पेंटेन 3 ओन, ठीक है। ई नहीं आएगा, सिर्फ इसकी जगह पर ओन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अभी देखो 1 2 3 4 5, टू so it ओन। is पेंटेन 2 ओन, करेक्ट। समझा। इधर लिखे तो 3, अगर यहाँ लिखते तो वापस से 2 हो जाता, यहाँ से काउंट करते। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा वहां से काउंट करने का। इतना समझा क्या, पहले बोलो किसको डाउट है। इन चारों एग्जाम्पल में किसी को कुछ डाउट है, शुड नहीं आई मिस। प्रोसीड। हाँ चलो नेक्स्ट। अभी CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अभी यहाँ पर देखो, हाँ ये रहा मेरा ब्रोमीन, ठीक है। 1 2 3 4, और ये रहा 1 2 3। किस साइड से जाऊं, राइट से कि लेफ्ट से। लेफ्ट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3, तो लेफ्ट से जाएंगे ना। तो इट लेफ्ट इज से 1 मिस। 2 3 4 5 6। सेकेंड पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो। तो इट इज 2 डैश टू ब्रोमो ब्रोमो पेन, नहीं हेक्स सॉरी, हेक्सेन हेक्सेन है ना, हेक्सेन हेक्सेन पूरा आएगा, 3 हेक्सेन 3 ओन। ओन। हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, हेक्सोन लिख देते हैं, हेक्सोन नहीं होगा, हेक्सेनोन बोलते हैं ना हम लोग पूरा। तो पूरा नाम पढ़ने का, हेक्सेनोन, तो गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप हेक्सोन लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अभी कहाँ से जाएंगे देखो, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे ना। तो पहले इसको ओपन करती हूँ, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इट इज 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, 4 मिथाइल। किसका माइक ऑन है, बंद करो। इट इज 4 मिथाइल। अभी देखो पेंट है, तो क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन 2 ओन। अरे कौन है ये, सुजल, सुजल प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अब ये देखो 1 2 3 4 5, तो पेंटिनोन होगा। पेंटिनोन का इसको ब्रेक कर दो, तो पेंट 3 इन एंड सेकेंड पोजीशन पे ओन है। तो दिस 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। आया कि नहीं समझ रहे, बोलो क्लियर। 4 मिथाइल एट द फोर्थ पोजीशन यस यू आर मिस। हैविंग मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड,
सेकेंड पोजीशन पर कीटोन, तो इट इज 4 मिथाइल पेंटेनॉन। तो पेंटेनॉन को ब्रेक करो, पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल, 7th one, CH3 C double bond O, then CH2, again C double bond O, CH2 CH3। इसका क्या नाम आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्सेन। कौन से पोजीशन पे कीटोन है? सेकेंड एंड फोर्थ, तो 2,4 डायोन, डाई हो जाएगा ना, 2 एल्डिहाइड 2 कीटोनिक ग्रुप है, तो इट इज डायोन। समझा? 8th वन देखेंगे अभी। अभी देखो यहाँ पे मजा आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CHO। अब यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगा एल्डिहाइड। और ये बन जाएगा ऑक्सो। समझा? एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगा और कीटोन बन जाएगा ऑक्सो। ये क्या हो गया अभी? 1 2 3 4, आप लिखोगे 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। आई बात समझ में? अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और एसिड भी है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? एसिड को। तो आपका एसिड। एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? फॉर्माइल। समझा? क्लियर हुआ मिस तो इतना अच्छे मिस तो हम से? लोग ऑक्सो कब लिखते हैं? ऑक्सो तब लिखेंगे जब एल्डिहाइड है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 COH लिखा। अब एसिड भी है और कीटोन भी है, किसको प्रेफरेंस मिलेगा? एसिड को, तो ये ऑक्सो हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन है, किसको प्रेफरेंस मिलेगा? एल्डिहाइड को, तो ये ऑक्सो हो जाएगा। एल्डिहाइड नहीं है तो सिर्फ ये C डबल बॉन्ड हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। समझा? अभी अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 COOH, यहाँ पे भी CH2 एंड CHO। अभी देखो यहाँ पे एल्डिहाइड भी है और एसिड भी। अब किसको प्रेफरेंस मिलेगा? एसिड को, तो एसिड ये को। क्या बन जाएगा? फॉर्माइल। समझा? तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्माइल। आई होप इट इज क्लियर। यस और नो? मिस ये 2 कंपाउंड का नाम लिखो ना। कौन सा ले कंपाउंड का? इसका? हाँ, और उसके नीचे का। हाँ, इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। सेम लिखा ना मैंने, खाली एसिड लिखा। 1 2 3 4, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब इसको नहीं, फंक्शनल ग्रुप को नाम नहीं देंगे, तो इट इज 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है? Why 3 formyl? Because at the third position your this formyl group is there, so it is 3 formyl propanoic acid। समझा? चलो अभी मिस लिखो, इतना ये कॉपी लास्ट करो। एग्जांपल में सी का मतलब CHO का कार्बन नहीं काउंट होगा। नहीं होगा क्योंकि आपका ये है ना, सब्स्टिट्यूएंट है इधर। आप इसको इसमें काउंट कर रहे हो ना, 3 फॉर्माइल बोल रहे हो आप इसको ऑलरेडी। देखो ना, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 मिथाइल बोलते हैं तो इसका कार्बन काउंट करते हैं क्या? 4 मिथाइल बोलते तो इसका कार्बन नहीं काउंट करते ना, वो चेन में नहीं आया, तो इसको हम लोग ने क्या किया? चेन से छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। समझा अभी? हाँ मिस। मिस तो मिस मिस तो हम्म हमारे पास अगर कीटोन और कोई अलग मतलब ये ग्रुप होगा तो ही मिस हम लोग हम्म ऑक्सो लिखेंगे ना? नहीं, हाँ, लेकिन कीटोन से स्ट्रॉन्गर 2 ही है ना, एक एसिड है और एक हाँ एल्डिहाइड है। मिस, वही। अभी देखो मैं बताती हूँ, ये देखो किसको प्रेफरेंस मिलेगा बोलो? COH। एसिड और एसिड। एसिड को मिलेगा, तो बेंजोइक एसिड बोलूंगी ना मैं। यस और नो? तो ये क्या हो यस। जाएगा? 1 2 3 4, तो क्या बन गया? 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मिस, यस। हाँ, अब देखो, अब ये देखो, अभी मेरे पास एल्डिहाइड है और यहाँ पर ये भी है, कीटोन है ना, ये C डबल बॉन्ड हो। देखो, यस और नो? यस अब मिस। किसको प्रेफरेंस मिलेगा? मिस CHO को। CHO को। तो 1 2 3, तो मैं क्या लिखूं इधर? 3 ऑक्सो बेंजाल्डिहाइड। अभी समझ आया? यस मिस। पक्का?
सबको समझा? ऐसे करते हैं। प्रेफरेंसेस ऐसे देखते हैं। पहला प्रेफरेंस आता है एसिड, उसके बाद आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आता है कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईथर सब बाद में आता है। ठीक है, हो गया तुम लोग का लिख के? नहीं नहीं मिस। मैम। लिख लिया क्या? हाँ ठीक है, लिखो। दिख रहा है ना अच्छे से अभी तो? आराम से लिखो, समझ के, हाँ कोई मिस। घाई नहीं है। और 3 एग्जाम्पल्स बचे हैं। सबको समझ रहे हैं अच्छे से? यस मिस। हो गया? नहीं मिस। नहीं मिस। मैम वो फिफ्थ का नाम क्या? फिफ्थ का नाम 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ओन। 2 ब्रोमो हेक्सेन HEXAN डैश 3 डैश ओन। और तुम लोग मेरे लेफ्ट होने के पहले क्यों लेफ्ट होते रहे सब लोग सुबह में? हाँ, जब तक मैं मीटिंग एंड नहीं करूंगी उसके पहले कोई लीव हुआ ना तो देखो, नेक्स्ट टाइम लेक्चर में लूंगी ही नहीं मैं तुम लोगों को। ऑनलाइन भी हकाल सकती हूँ मैं तुम लोग को। हाँ, तो बोल के जाने का लेक्चर रहता है। तो सिद्धेश का आई कैन अंडरस्टैंड, उसने पहले से ही बोला है। बाकी लोगों का क्या? लेक्चर खत्म हुआ नहीं कि एकदम दौड़ के भागने का। अगर भागे तुम लोग मेरे एंड करने के पहले तो देखो तुम लोग, मैं गिन के रखती हूँ, नए लोगों को अलाउ करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम। वी आर नॉट योर सर्वेंट्स ओवर हियर। हो गया लिख के? किधर तक पहुंचे? ये 8th नंबर दे दो इसको, 9th इसको, 10th। ये तो ऊपर वाला भी लिख दो, 11th एंड 12th। यू कैन गिव इट नंबर 9। ये भी तो एग्जांपल ही है ना। 10, ये ऊपर वाला 11th, ये 12th। टर्न करूँ पेज? हो गया सबका? नहीं मिस। वेट ओके मैम। ओके ओके ओके। मिस 11th एग्जाम्पल कौन? 11th ऊपर है, रुक जाओ इन लोग का हो जाने तो बताती हूँ। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। नीचे का हो जाएगा तो बोलो, फिर ऊपर का दिखाती हूँ मैं एग्जाम्पल। और ये सारे IUPAC सब लोग प्रैक्टिस करेंगे आज ही। कल मैं पहले क्वेश्चंस पूछूंगी और जो मुझे आंसर नहीं करेगा सीधे कॉल उसके पेरेंट्स को जाएगा। वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर है। मैम ये टेंथ पहले मैं का क्या? 5-10 मिनट टेस्ट लेने वाला हूँ। हाँ बोलो। टेंथ का वो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है।
ये रहा CHO CH2 CH2 COH 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड मिस ये नाइन्थ का नाम क्या है? 4 कार्बन 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। क्या बोल रहे हो दिवेश? 4 कार्बन है ना उधर नीचे सबसे नीचे वाले हाँ पे। हाँ हाँ 4 कार्बन 1 2 3 4 और ये CHO है एंड में और एक जगह पर COH है। मैम सी है ना, वो सी तो पास में बोला सीधा काउंट नहीं कर। हाँ काउंट नहीं करने का, पर लिखने के टाइम पे लिखेगा ना भाई। हाँ ये ओके। कार्बन छोड़ेगा थोड़ी, लिखेगा ना, लिखने के लिए बोल रही हूँ। 4 कार्बन है। मिस वो 9th का ब्यूटेनोइक एसिड है ना? यस ब्यूटानोइक एसिड। मिस ये एफ भी कैपिटल होगा फॉर्मल प्रोपेनोइक एसिड का? हाँ हाँ कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, स्मॉल लिखा तो भी चलेगा, दोनों करेक्ट है। ये वापस लिखूं क्या? नीचे वाले कंपाउंड्स दिख नहीं रहे ठीक से। लिखूं क्या नेक्स्ट पेज पे? दिख गया कि लिखूं? हाँ मिस दिख। ठीक है ठीक है। मिस वो टेक्स्ट बुक में 7th और 8th वाला है ना, तो उसको वो हाँ मतलब कॉमन नेम नहीं दिया है, हाँ इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि उसका जो नहीं आता जनरली क्या? डाई वाले होते हैं ना उनको कॉमन। नहीं नहीं उसका नहीं आता है। दिखाओ एग्जाम्पल नंबर 11। ये 11th है और ये 12th। 11th कैसे? ऊपर एसिड नीचे CHO, तो 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड और यहाँ पे कीटोन और यहाँ पे एल्डिहाइड, तो 3 ऑक्सो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। 11th एंड 12th। मैंने सबसे स्लोएस्ट स्पीड से तुम लोगों को IUPAC सिखाया है। Rate determining step, slowest step of the reaction. So slowest step of the lecture is always IUPAC. हो गया? नहीं मिस। थ्री डैश है वो, 3 ऑक्सो बेंजाल्डिहाइड। हाँ O कैपिटल लिखो, बराबर करेक्ट। ऑक्सो पूरा कैपिटल नहीं आएगा, सिर्फ O कैपिटल आएगा। पूरा ऑक्सो कैपिटल नहीं लिखना है। ओके हो गया क्या? बोलो रे बाबा जल्दी। दो लिखने को कितना टाइम तुम लोग लगाते हैं? हाँ मिस डिजाइन मत डन। बनाते बैठो। डन चलो नेक्स्ट। मिस अभी कल एग्जांपल नंबर कल टेस्ट 13। होगा ना, हाँ वो आपने मतलब ये जो हाँ लिस्ट दिया है पूरा इसमें से ही मतलब अलग अलग होगा ना? हाँ हाँ इसमें सही रहेगा। यस यस ऑलमोस्ट इसमें सही रहेगा। एक आधा मैं कुछ ऐसे सिंपल एग्जांपल्स बाहर के दे दूंगी। 10 ही मिनट टेस्ट और तुम लोग खुद का पेपर खुद ही चेक करोगे, ऐसा नहीं। पर मुझे समझेगा कि किसने कितना पढ़ाई किया है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मैं उस पर क्वेश्चन पूछने ही वाली हूँ। हाँ मिस। ठीक है चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। अभी ये सबसे सिंपल है। इट इज C डबल बॉन्ड O, ऐसा है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजो। इसको बोलते हैं फिनोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पता है? बेंजो फिनोन। समझा? क्योंकि एक बेंजाइल रिंग हो गया ना, याद है बेंजाइल बताया था मैंने, बेंजाइल रिंग, और इसको बोलते हैं फिनोन, तो ये हो गया बेंजो फिनोन। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अभी देखो C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन
फिनॉन, ये कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम वही है। इसका मिथाइल फिनाइल कीटोन है, वो बाद में जाने दो। तो इसका कॉमन नेम भी आइसोटोफिनॉन है। और एक लास्ट वाला है अपने पास, which is डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे एक डैश है। इस डैश का मतलब क्या है? मिथाइल ग्रुप। देखो 1 2 3 4, मिथाइल का M पहले आता है क्या, क्लोरो का C पहले आता है? तो C, so we will write on here 2 dash chloro dash 4 dash methyl, फिर क्या हो जाएगा ये? ओ सॉरी, ये नहीं है अंदर, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, सर्कल नहीं है अंदर, डबल बॉन्ड नहीं है। So it is 1 2 3 4, alphabetically you have to go, so it is 2 chloro 4 methyl cyclohexanone। ये हो गए आपके टोटल 15 एग्जाम्पल्स। आई होप सबको समझ में आया अच्छे से। हो गया? चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, फटाफट सॉल्व करो। राइट द आईयूपीएसी चाहिए तो इसे में ऐड करो या फिर अलग से डालो, चलेगा। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स: COH CH3 OH, first example. Second one is चलो थोड़ा सा example number 2. Third one, इजी इजी दे रही हूँ मैं, टेक्स्ट बुक के पीछे के भी नहीं दे रही हूँ, बहुत इजी दे रही हूँ। और क्या दूँ? और क्या दे सकते हैं? CHO, इस डैश का मतलब क्या है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन लिखो पहले सब, ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने। चलो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी करो और सबके आंसर्स बोलो। दिख रहा है सबको अच्छे से? You will get 6 minutes to solve this. और भी हैं 3, वो मैं बाद में लेती हूँ, पहले इतना सॉल्व कर लो। क्वेश्चन लिख के हो गया? मैं वॉशरूम जाके आती हूँ क्योंकि फिर हिल जाएगा कैमरा। क्वेश्चन हो गया क्या लिख के? आप पकड़ोगे? बस इतना ऐसे करिए, ये ऊपर हो रहा है। हो गया क्वेश्चन लिख के सबका?
डन। चलो मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। चलो हो गया सबका सॉल्व करके। आ रहे हैं क्या आंसर्स? यस मैम। यस मैम। हो गया, सॉल्व हो गया सबका। चलो हु विल आंसर? पहले वाले का आंसर क्या है? 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। वेरी गुड। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल डैश 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ऋषि मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है बच्चा, आपके यहाँ का नेटवर्क खराब है। अभी सबको सुनाई दे रहा है ठीक से, है ना? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ। अब इसका नाम बताओ। 1 2 3 3 3 फॉर्मल 3 बेंजोइक फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। बेंजाल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, एसिड किधर है?
है ना? हाँ मिस। यस और नो? मिस लेकिन प्रेफरेंस तो मिस वो एसिड को देंगे। मिस हाँ आपने मिस। ओ बोला सॉरी, हाँ प्रेफरेंस। मैम। एसिड, अरे सॉरी 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 मैंने वो एल्डिहाइड देखा, सॉरी। हाँ मिस बराबर वही। बराबर, फॉर बेंजोइक एसिड था। अरे मेरे को दिमाग में ये था कि ये नीचे OH है, सॉरी। हाँ चलो, अब ये देखो, ये जो है ना, ये एलिफैटिक चेन है, ये एरोमेटिक चेन है, तो हमेशा एलिफैटिक को प्रेफरेंस मिलता है। दिस 1 2, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। पता था ये, 11th में सिखाया था मैंने। when मिस वो there is कैसे? aliphatic chain and aromatic chain, देखो जब ये एलिफैटिक चेन होता है और एरोमेटिक चेन होता है, तो एरोमेटिक को प्रेफरेंस नहीं मिलता, एलिफैटिक को मिलता है। तो दिस इज 1 2। सेकंड पोजीशन पे कौन है? फिनाइल ग्रुप। तो 2 फिनाइल, देयर आर 2 कार्बन, so it is called as ethanoic acid। समझा? यस मिस। यस। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, ये कौन बताएगा? इजी है ये, 1 2 3 4 5 6। फ्लोर 4 क्लोरो हेक्सेन 2 1 4 क्लोरोहेक्सेन 2 2 ओन, बराबर 1। ना? यस, 4 क्लोरो हेक्सेन, हेक्सेन का ई लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं लिखा। 2 ओन नहीं लिखना है, जब ये डायोन होगा तभी पूरा लिखने का, ठीक है? चलो ये किसका आंसर था? फोर्थ वाले का। फिफ्थ, हु विल आंसर फॉर द फिफ्थ वन? मिस वो सॉल्व कर रहे थे। अच्छा करो करो, मुझे लगा हो गया तुम लोग का। ठीक है करो, और भी एग्जांपल्स देती हूँ खतरनाक वाले। डैश का मतलब मिथाइल ग्रुप। हाँ, मिस ये फोर्थ का दिखाओ ना पूरा। ये रहा, 4 क्लोरोहेक्सेन 2 ओन, इसका आंसर है। समझा ना बच्चों तुम लोग को मैंने क्या इतना पकाया 1.5 घंटा? मिस ये आपने लाइन निकाला है ना, अभी वो CH3 है क्या? हाँ, CH3, उसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। जब भी कुछ नहीं रहता है मतलब मिथाइल ग्रुप रहता है। मैम सेकंड वन क्या है? वो थर्ड वन सॉरी। सेकंड वन का क्या? सेकंड वन का आंसर बताऊं? नहीं थर्ड वन। थर्ड वन का आंसर 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। जब भी एलिफैटिक होगा और एरोमेटिक होगा तो एलिफैटिक को प्रेफरेंस देने का, ऐसे चेन जाने का। देखो ना, एसिड इसको डायरेक्टली अटैच नहीं है, एसिड दूर है, तो ये चेन बन गया आपका, तो इसको फिनाइल बनाने का, और इसको 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। और दूंगी वैसे एग्जांपल, डोंट वरी। यस यश बराबर है। यश गुरव ने आंसर कर दिया इसका, और ये तो एकदम क्या ही बात है, एकदम ही सिंपल है ये तो। साइक्लोहेक्सेनॉन है ये। इसका आंसर क्या आएगा? 3,4 डाइमिथाइल बेंजाल्डिहाइड। एम आई राइट? और लास्ट वाले यस का क्या मैम। आएगा? 1 2 3 4, 2,4 ना, 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। करेक्ट? यस मैम। चलो इतना हो गया सबका, आई होप इतना सबको अच्छे से समझ में आया। चलो अभी और एग्जांपल देती हूँ। मिस सिर्फ 5th का नहीं आया ये देखो, और ये थर्ड का। देखो 1
2 3 4 5 6 थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। 3,4 दो मिथाइल था तो डाई लिखेंगे ना, डाई मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। नहीं मिस वो समझा बट आंसर नहीं आया आपसे पहले। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ में आया ना लेकिन अभी? यस मिस। हाँ ठीक है, ओके चलो अभी मैं और एग्जांपल देती हूँ। अभी है अपने पास 7-8 मिनट है, तो एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व करो अच्छे से, प्रैक्टिस। और कल पढ़ के आना, अगर बिना पढ़े आए ना तो तुम लोग देखो, तुम लोग का ना मैं मर्डर ही कर दूंगी, मतलब क्लास खुलने के बाद। चलो अभी नेक्स्ट 7th एग्जांपल लिखो। 1 2 3 4 5, चलो लिखो इसका नाम। ट्राई करो, आएगा तुम लोग को। देख के डर जाओगे क्या लिखा है इसमें, बट बोलो इजी है एकदम। आएगा क्या ये? देखो मैं एक हेल्प करती हूँ। एंड में क्या रहता है? CH3, सभी जगह पर C है, ठीक है, सभी जगह C लिख दिया। अब बैलेंस से बैलेंस करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बैलेंस हो गया। ये क्या है देखो, एल्डिहाइड है, दिखा, C डबल बॉन्ड OH, करेक्ट। अब देख हाँ दो बराबर। स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5, क्या आएगा नाम इसका? पेंटेनल। समझा? किसको नहीं समझा रेज योर हैंड। ये एल्डिहाइड है ना, कार्बन और डबल बॉन्ड O, गड़बड़ नहीं करने का। अगर यहाँ पे CH3 रहेगा तो ही वो कीटोन है, H रहेगा तो एल्डिहाइड, एकदम आराम से करने का। ये देखो 1 2 3 4 5, पेंटेनल, ठीक है। अरे यहाँ पे Br लिखा था, हम सो सॉरी, मैं भूल गई। इधर पे एक Br है, इधर पे एक और Br है। अभी यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब कार्बन, इधर पे भी कार्बन, सब जगह पहले कार्बन लिखो, ठीक है। यहाँ पे एंड पे क्या रहता है? CH3 रहता है, याद आ गया? CH3। हाँ ये भी कार्बन। अभी देखो इस कार्बन का क्या हो जाएगा? CH3, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, इसका वैलेंसी कंप्लीट है, यस और नो? सब लोग एकदम ध्यान दो, पहले सब रख दो पेन वेन नीचे। यस ये मिस। कार्बन का CH3 है, ये कार्बन 1 2 3 4, वैलेंसी क्लियर। इसका 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 4, 1 2 3 4, इसका चारों कंप्लीट है, इसका भी चारों कंप्लीट है। अब इसको ओपन चेन में लिख के देखो कैसा दिखता है ये। सो आई विल राइट डाउन योर CH3। फिर मेरे पास C था, एक Br इधर है, एक Br इधर है, देखो ओपन चेन लिख रही हूँ मैं इसका, बराबर। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? CH2, फिर CH2। अरे मेरा पेन खत्म हो गया, एक मिनट। हाँ फिर ये हो गया CH2, किधर तक पहुंचे देखो, ये C था ना, दो Br इसको अटैच है तो दो Br अटैच कर दिया, फिर ये CH2 अटैच हो गया, फिर ये वापस से CH2 आ गया, अभी वापस से C, इसी C को कौन अटैच्ड है? CH3, CH3, और फिर है CHO। अभी आएगा, अभी आएगा करने को, यस और नो? यस मिस। समझा? ऐसे ओपन कर दो तो क्या हो गया इसका नाम? 1 2 3 4, 1 2 3, ये है ना लॉन्गेस्ट नंबर, नहीं है इसको, नंबर नहीं है इसको, नहीं है इसको, नहीं है, क्या लिखेंगे? मेरे 5 इधर आएगा, ये 6 आएगा ना, 6 कार्बन है, तो 5,5 डाई ब्रोमो, फिर 2,2 डाई मिथाइल, क्या नाम आएगा बोलो? हेक्सेनल। आया समझ में? इसी था, क्या डिफिकल्ट था यस बोलो? मैम। हाँ अभी ये करेंगे, ये ट्राई करेंगे। एंड में कुछ यस नहीं, मिस। मतलब CH3, पहले सब जगह CH3 लिख देने का। ये देखो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ पे मिस CH3, ये एग्जाम में ऐसे CH3, देंगे क्या?
हाँ ऐसे आता है। जो तुम लोग को मेरे टेक्स्ट बुक के उसमें से सिखाया वो इजी रहता है, वो लोग बहुत शाणे हैं, इजी वाला सब खुद सॉल्व करते हैं और डिफिकल्ट वाला बच्चों को दे देते हैं। अभी ये ट्राई करो, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल मुझे इसका आंसर बताना। चलो मैम क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है? 2-3 मिनट है तब तक ये रहा। I hope everybody is very clear with IUPAC यस मैम। aldehyde ketones का। किसी को कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी 5% भी डाउट है तो कल वापस से पूछना। और क्या बोला है मैंने, 10 और 10:30 जो भी है सर बताएंगे आपको, लेक्चर होगा। तुम लोग 10 के हिसाब से रहो, बट शायद से बीरेन सर बोल रहे थे कि 10:30 रखेंगे क्योंकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे तुम लोग आओगे, जब भी लेक्चर हो, जैसे ही तुम लोग आओगे, क्या हो गया 9th वाले में बीच में CH होगा। 9th वाला कौन सा, हाँ मैंने लिखा नहीं पूरा, ये वाला बोल रहे हो, 1 2 3 4 है ना इसका, 1 2 3 4 मैंने लिखा नहीं, मैंने सिर्फ कार्बन बताया आपको, सब बाकी है। मैंने सिर्फ कार्बन लिखा है ऋषि, मैंने खाली स्केलेटन लिखा है। लॉन्गेस्ट चेन देखो ऐसा ढूंढना पड़ेगा तुम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझा क्या? और दो दो है देखो, डायोन आएगा, डायोन, समझा? 1 2 3 4, ऐसे नहीं जा सकते ना, ऐसे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 मिस थोड़ा 7 नीचे 8 ले 9 लो ना 10, तो क्या करूँ, इस कैमरा। ऐसे जाने का पड़ेगा। हाँ ओके ओके। और जाएंगे कैसे पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, समझा? ये इथाइल ग्रुप भी सब, ये इथाइल आएगा सब्स्टिट्यूएंट में, मतलब देखो ऐसे हो जाएगा। ओपन स्ट्रक्चर बताऊं मैं, चलो बता ही हाँ देती हूँ, मिस। 2 मिनट है। CH3, ठीक है, फिर ये हो गया CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, वापस से C डबल बॉन्ड O, फिर ये हो गया C, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, फिर वापस से हो गया CH2, फिर क्या हो गया यहाँ पे C, हाँ मतलब CH होगा और यहाँ पे CH2 CH3 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा CH2, ऊपर क्यों लिखा मैंने पागल जैसे, इधर लिखना चाहिए, सॉरी, CH2, एक और CH2, एक और CH3, कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है। तो इथाइल का ई पहले आता है कि मिथाइल का एम पहले आता है, जल्दी बोलो। इथाइल, तो 7 इथाइल, फिर 5,5 डाई मिथाइल, हाँ फिर क्या लिखेंगे, डेकेन, 3,4 डायोन, है ना, डेकेन है ना वो, 10 कार्बन, डिकेन 3,4, ये देखो 3,4 डायोन, समझा? IUPAC देखो कैसे, ये इथाइल ग्रुप इधर था, ऐसा चेन चला गया मेरा, ऐसा, ओके। डाई मिथाइल का जो डी है ना, डी डाई बाई टेट्रा पेंटा नहीं लेते, समझा? अभी किसने पूछा क्वेश्चन, यश ब्रो, मिस उससे अंडरस्टूड? डाई ट्राई टेट्रा का वो सब नहीं देखना है, हम लोग को क्या देखना है, इथाइल देखना है और मिथाइल का एम देखना है, ये मेन है ना, डाई ट्राई पेंटा हेक्सा नहीं है। हाँ बोलो बोलो, मिस वो हो इथाइल के गया बाद में डन, आपने डैश डैश डाल के फायर लिखा है, फिर उसके बाद में डैश डाल के 5,5, हाँ फिर उसके बाद डैश, 2 नंबर के बीच में कॉमा आता है, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन आता है, ये देखो यहाँ पे भी लिखा है 3,4, हो गया क्या? मिस ये इतना बड़ा आएगा क्या?
हाँ फिर इससे भी बड़ा बड़ा आता है, 2 लाइन का। 1 मार्क्स ऐसे थोड़ी देंगे। और ये पता है ऐसे कभी कभार नीट और जेडब्ल्यू में आता है 4 मार्क्स के लिए, कितना इजी है देखो। चलो एंड करूँ क्या, मीटिंग हो गया ना अभी। हाँ मिस। चलो अभी कल डिस्कस करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे बाद में। आते हैं दिवेश इतने बड़े कंपाउंड भी, ठीक है। चलो सी यू टुमारो, बाय बाय, बी रेडी फॉर द टेस्ट।